Hello everyone, welcome to the 7th part of our 300 important questions for SEBI General Examination 2024. If you want to practice some more questions, then you can click on the link in the description, hit the SEBI button and practice some more questions related to the subject as per your choice. Hello everyone, welcome to iExamB. My name is Pratik Taldar and इस वीडियो के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं. फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर पूछा था. We need to calculate the quick ratio assuming that यहाँ पे preliminary expenses की जगह prepaid expenses अगर given होता तो जो quick ratio आ रहा था whether it will change or it will remain the same. So the answer is it will remain the same क्योंकि quick assets के लिए we only consider in this case debtors and cash in hand. Stock is not the part of quick asset. It is a current asset but not a quick asset. These losses are fictitious assets. And prepaid expenses is again your current asset but it is not your quick asset. So the answer of quick ratio will remain the same even if यहाँ पे prepaid expenses लिखा हुआ होता. However, in case if I ask you the current ratio now, then it will be changed because prepaid expenses are current assets, so definitely it will change the current ratio. Let's start today's questions. Which of the following accounting standard is related to accounting for depreciation? So earlier what used to happen is accounting standard for depreciation used to be AS6. Eventually it got merged into AS10. AS6 हटा दिया गया था and only AS2 is now there which deals with the property, plant and equipment and the depreciation related to property, plant and equipment. So AS10 option E is the correct choice here. Next one is which term describes the market price of a share before a right issue is announced. तो राइट इशू होने से पहले हम मार्केट प्राइस को कौन सी वैल्यू इसमें से कहते हैं. सो दिस इज योर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का क्वेश्चन रिलेटेड टू शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर राइट इशू. सो बिफोर द राइट इशू इज अनाउंस्ड वी कॉल द मार्केट प्राइस एज कम राइट मार्केट प्राइस. हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. बिफोर मार्केट प्राइस को वी कॉल इट कम राइट मार्केट प्राइस and just after the right issue is being made we call it X right market price. So the right issue is not yet made, so this price is come right, which means with right including right market price. Next question, the member of tribunal and technical members of appellate tribunal shall be appointed on the recommendation of whom? So the correct answer here is selection committee as per section 400. Selection of members of tribunal and appellate tribunal shall be appointed on the recommendation of selection committee. उस selection committee में there will be Chief Justice of India as the chairperson, a senior judge जो कि हाई कोर्ट से होंगे, सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से एंड सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से एज अ मेंबर. सो दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू योर कंपनी लॉ पार्ट. What requirement does section 141 of the Companies Act impose on firms appointed as auditors of a company regarding the authorization to sign and act on behalf of the firm? तो section 141 क्या impose करता है firm पे regarding the authorization to act and sign on behalf of the firm? तो basically जो firm के behalf पे act कर सकते हैं, sign कर सकते हैं, वो section 141 में defined है कि only the partners who are chartered accountants must be authorized to act and sign on behalf of the firm. So we all know that auditing जो इंडिया में करते हैं वो chartered accountants ही कर सकते हैं. So जितने भी पार्टनर हैं वो एक्ट कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पे, साइन भी कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पे, बट दे मस्ट बी चार्टेड अकाउंटेंट्स ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर कॉस्टिंग सब्जेक्ट. कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है? सो बिहेवियरल क्लासिफिकेशन है. आखिर फिक्स कॉस्ट होना, वेरिएबल कॉस्ट होना या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट होना इज नथिंग बट द बिहेवियर ऑफ योर कॉस्ट. कॉस्ट का बिहेवियर क्या है? क्या वो फिक्स रहती है या फिर वो आउटपुट के साथ साथ चेंज होती है या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? सो इट्स अ बिहेवियरल क्लासिफिकेशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी नीड टू कैलकुलेट द सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 6000. सो हमको सेल्स निकालनी है, ऐसी सेल्स जिससे हम 6000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर सके. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर मार्जिनल कॉस्टिंग. व्हाई? बिकॉज वी आर काइंड ऑफ इवेल्युएटिंग अ डिसीजन हियर कि कितनी सेल्स कर दूंगा ताकि 6000 रुपए का प्रॉफिट मेरे पास आ जाए. वी हैव फिक्स कॉस्ट ऑफ 12000, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 रुपीज,
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 9 रुपीज। तो जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन वी आर हैविंग, वी विल ट्राई टू मेक our income statement. Sales minus variable cost will be 3 rupees here, which is our contribution, and fixed cost is 12,000 rupees. Basically here we want profit of 6,000, right? That's our desired profit. Our PV ratio will be 3 rupee contribution per unit divided by 12 into 100 rupee here. So 25% तो आपका यहाँ पे PV ratio आ गया। अब सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां पे होता है फिक्स कॉस्ट, जो कि हमको कवर करना है। किससे कवर करना है? कंट्रीब्यूशन से। तो वी आर टेकिंग पीवी रेशियो हियर प्लस अ डिजायर्ड प्रॉफिट, बिकॉज हमको फिक्स कॉस्ट तो कवर करनी है, एक डिजायर्ड प्रॉफिट भी कवर करना है 6,000 रुपीज का। सो 12,000 इज अवर फिक्स कॉस्ट प्लस द डिजायर्ड प्रॉफिट वी नीड टू कवर इज 6,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो विच इज 25% ईयर। तो 72,000 रुपए की अगर हम सेल्स कर देते हैं तो इन दैट केस वी विल बी एबल टू कवर अवर फिक्स कॉस्ट, ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज वी हैव टेकन डायरेक्टली पीवी रेशियो, एंड वी विल अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 6,000 रुपीज हियर. So D will be your correct choice here. In the next question, we need to tell that what is the eligibility criteria for stocks to be eligible for short selling. By short selling we mean that selling the shares without having it in your account. So basically what we do here, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, राइट? यू नीड टू बाय अ शेयर और उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हो. तो ये तो नॉर्मल रूट होता है. अच्छा, काफी लोग शॉर्ट सेलिंग प्रेफर करते हैं, मतलब पहले आप सेल कर दो और फिर बाद में उसको बाय करके दे दो. तो अगर मैं 10 रुपए का बाय करता हूं और 12 रुपए पे सेल करता हूं, दैट इज ऑल्सो फाइन. अच्छा, मैं 12 रुपए पे बाय करता हूं और 10 रुपए पे सेल कर देता हूं, तो भी बात तो वही है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. सो वी कैन सेल इन एडवांस 12 रुपए पे और उसके बाद हम बाय करके वापस दे सकते हैं. अच्छा, काफी लोगों को ये वाली बात सूट नहीं होती है, तो एक बेसिक सा एग्जांपल लेके बताता हूँ. मान लो मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूँ और अभी मेरे पास सिर्फ 100 पेन ही पड़े हुए हैं. मान लो कोई कस्टमर का कॉल आता है और वो मुझे बोलता है कि यार सर मुझे तो 1000 पेन चाहिए, राइट? तो 900 पेन तो मेरे पास है ही नहीं. तो मैंने तो उनको बोल दिया है कि आप पूरे 1000 पेन आके शाम को लेके चले जाना, राइट? तो सेल्स तो मेरी हो गई बोलते ही. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्स तो उनको 1000 की कर दी, जबकि मेरे पास तो सिर्फ 100 पेन ही थे, और उनको शाम को बुला लिया. एट द सेम टाइम अब मैंने क्या किया, शाम होने से पहले मैंने ये 900 पेन अरेंज कर लिए, कहीं और से बाय करके उनको दे दिए. तो ये भी तो शॉर्ट सेलिंग ही हुई, राइट? फर्स्ट आई हैव सोल्ड द पेन एंड देन इवेंचुअली मैंने उनको शाम तक वापस बाय करके दे दिए. तो ऐसा स्टॉक मार्केट में भी हो जाता है. आप 12 रुपए पे पहले बेच सकते हो, उसके बाद आप वापस 10 रुपए पे बाय करके दे सकते हो. So here the question is, what is the eligibility criteria for stocks to be eligible for short selling? अब हम हर स्टॉक के अंदर शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते. तो ये सेबी रेगुलेशंस में से आपका क्वेश्चन आया हुआ है. द स्टॉक मस्ट बी लिस्टेड इन द F&O सेगमेंट, जिसका फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर लिस्टिंग होती है, उसी स्टॉक को वी कैन शॉर्ट सेल. So this question is from your SEBI circular. Basically it's a kind of dynamic finance वाला question. Next, an investment fund that is traded on exchange is known as, again this is related to your finance portion. So ऐसा investment fund that is traded on the exchange is known as ETF, which is exchange traded funds. Mutual funds यहाँ पे exchange पे trade नहीं होते हैं, rest of the funds भी exchange पे trade नहीं होते हैं. It is the exchange traded fund जिसका short form होता है ETF. इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो निफ्टी बीज. जैसे म्यूचुअल फंड में इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं, सो वी कैन इन्वेस्ट इन इंडेक्स वाया द म्यूचुअल फंड. इसका एक और तरीका होता है इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का, कि अगर आप डायरेक्टली निफ्टी बीज बाय कर लो, जो कि एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है. वैसे ही आपके गोल्ड ईटीएफ्स भी होते हैं, एंड सिमिलरली बहुत सारे ईटीएफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर मेथड for collecting data about the personal qualities of employee is called as. So this question is related to your management subject. तो एक structured question method is being followed to collect the data about the personal qualities of the employees. So is it functional job analysis? No. Management position description questionnaire? No. Work profiling system, ये थोड़ा related लग रहा है. यहाँ पे C is the correct choice. Work profiling system is an integrated efficient system that informs hiring and promotion decisions in alignment with the business objective. So यहाँ पे we have collected the data about the personal qualities of employee. It is nothing but the work profiling system.
द लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे M0 यहाँ पे किसको बोला गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस क्वेश्चन को आपके एड्रेस करने वाला हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching this video. Join iExamB and prepare 50% faster.